जल्दी से 3 चीजें बता देता हूँ. I'll tell you 3 things very Let me give you quickly. 3 revelations. 3 प्रकाशन मैं आपको देता हूँ. Very beautiful revelation. बहुत खूबसूरत. Every marriage is an altar, हर विवाह एक वेदी है, not an emotion. भावना नहीं है. I'll say this again to you. Have a control over your emotion. It will bless you. आपसे मैं आज फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा तो लगाम लगाइए. Every marriage is sealed on 2 altars. और हर विवाह 2 वेदियों के ऊपर खड़ा होता है. The first, either your marriage will be the altar of Yahweh, या तो वो याहुवे का वेदी होगा, where it will be covenant, priesthood, purpose. वहां पर वाचा होगी, याजकीयता होगी और उद्देश्य होगा. Hallelujah. Either it will be that altar, या तो ये वाला वेदी होगा, otherwise it will be the altar of Baal. या तो फिर वो बाल की वेदी होगी. There, either it will be lust, in that it will be lust, bloodline manipulation, spiritual traps. वहां पे लत, वासना, पीढ़ीगत छेड़छाड़ और आत्मिक जाल होगा. So either your marriage is Yahweh's altar or it is the altar of Baal. तो आपका विवाह या तो याहुवे का वेदी हो सकता है या फिर बाल की वेदी हो सकती See, Malachi 2:13-14 says like this. है. और मलाकी 2:13-14 इस प्रकार से The कहता है, Lord is the witness between you and the wife of your youth. यहोवा तेरे और तेरी जवानी के पत्नी के बीच साक्षी है. So God is not just watching your marriage, परमेश्वर सिर्फ आपके विवाह को देख नहीं He रहा is है, witnessing your altar. वो आपकी वेदी का साक्षी बना है. So God is very clearly watching तो परमेश्वर बड़े ध्यान से देख रहा है. that is God being given priority in your marriage. वो देख रहा है कि क्या परमेश्वर को प्राथमिक स्थान दिया जा रहा है आपके If a विवाह में. husband and a wife come together and give importance to God, अगर एक पति और एक पत्नी एक होकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देते it हैं, becomes an altar of Yahweh. तो वो विवाह याहुवे की वेदी बन जाती है. So ask yourself, what kind of altar are you having today? अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने कैसी वेदी बना रखी है अपने विवाह में. Your altar will define what kind of blessings is going to come into your marriage. और आपकी इसी वेदी पे निर्भर करेगा कि आपके विवाह में किस तरीके की आशीषें आनी चाहिए. The next revelation is अगला रेवलेशन है the war of the 2 seeds. 2 सीड्स का, 2 The war of the 2 seeds. बीजों का युद्ध. Genesis 3:15 says, उत्पत्ति 3:15 कहता है, listen to me, I will put enmity between your seed and her seed. मैं तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा. Hallelujah. Now this, who said this? God himself. किसने कहा? यह परमेश्वर ने स्वयं कहा. The war that you are having in your house didn't start in your house. जो लड़ाइयाँ, युद्धें आपके घर के अंदर शुरू हुई, आपको लग रहा है शुरू हुई है, वो वहां से नहीं शुरू हुई. You are unnecessarily fighting at your home. आप फालतू में ही अपने घर में लड़ाइयाँ कर रहे हो. Unnecessary emotional trauma is going on in your home. और बिना मतलब के आप एक दूसरे को भावनात्मक रूप में घात किए जा रहे हो, दर्द दिए जा रहे Your हो. war did not start at home. आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े घर से नहीं शुरू हुए It हैं. started in the Garden of Eden. वो आदन वाटिका से ही शुरू हो चुके थे. The serpent is attacking your marriage. और वो सांप जो है आपके विवाह पे हमला कर रहा है, क्योंकि the womb of the woman is a throne for the next move of God. क्योंकि एक स्त्री का गर्भ परमेश्वर की अगली चाल के लिए सिंहासन है. He very clearly knows out of womb will come somebody who will become a throne and the next move of God can happen through him. और उसको पता है कि एक स्त्री के गर्भ से एक अगला पीढ़ी उत्पन्न होगा, एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न होगा जिसके द्वारा परमेश्वर का योजना सफल हो सकता है. He also knows the seed of a godly man is the carrier of divine government. और उसको ये भी पता है कि एक धर्मी पुरुष का बीज स्वर्गीय शासन का वाहक है. So if Satan can prevent the union, अगर शैतान इसी जोड़े को या इसी एकपन को तोड़ दे, he can corrupt the seed. तो फिर वो बीज को ही नाश कर सकता है. Let me end it up like this and I'll be talking about this in the coming days. और आने वाले दिनों में इस विषय में और भी आपको गहराई से सिखाऊंगा. Every family that fights, हर परिवार जो झगड़े करते हैं, every husband and wife that fights, हर एक पति पत्नी जो लड़ाई करते हैं आपस में, that is the gravest thing you could do to your children. वो सबसे बड़ी गलती है
जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। You know, there is nothing more worse that you can do to your child. इससे बुरा अभिशाप और कोई नहीं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए। You know, because your children are getting affected. क्योंकि आपके बच्चे इसमें सबसे ज्यादा सहते हैं। They would be called to do something great. उनके जीवन की बुलाहट तो बहुत बड़ी होगी। But parents sometimes do not realize that. लेकिन माता पिता इस बात को समझते नहीं। I know numerous families मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ that fight in front of or shout, scream, curse in front of their children. जो अपने ही बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां बोलते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। I sometimes think, how can a husband have alcohol and come to his home when he knows a little child is there at home? मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि एक मर्द, एक आदमी ऐसा कैसा हो सकता है कि शराब के नशे में अपने घर के अंदर प्रवेश करे जहाँ पे उसके छोटे बच्चे हों, एक छोटा बच्चा हो। You know, I've seen families where parents abuse in the family. और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे घर के अंदर बड़े गाली गलौज करते हैं। Oh, there are fighting, literally, you know, hitting each other. और ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे हाथापाई होती है, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। Are you going through it? क्या आप ऐसे मंजर से गुजर रहे हैं? Have you gone through it? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? Have your parents gone through it? क्या आपके माता पिता के साथ ऐसा हुआ Were है? you once a child? क्या आपका बचपन ऐसा गुजरा है? Hallelujah. Pray that God may break it in the name of Jesus tonight. आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु के नाम से ये दुर्व्यवहार और ये अब्यूज आपके जीवन से टूट जाए। Hallelujah. Because once this is broken, people of God, क्योंकि एक बार अगर ये टूट जाए, you know, the kind of freedom that will come into your family, the joy that will come in your family would be amazing. आपके परिवारों के अंदर जो स्वतंत्रता आप महसूस करने पाएंगे, जो आनंद आप महसूस करने पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा अलौकिक। I know so many people who come from a broken family. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो एक टूटे परिवार के अंदर से बाहर निकले। And the funny part is those parents still trying to justify and trying to prove that they are right, and then किसी और को भी वो टिप्पणी दे रहे हैं अच्छी मैरिज कैसे होती है। वो सब देख के मुझे ज्यादा हंसी आती है कि आप योग्य ही नहीं हो कुछ और बोलने के लिए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी नहीं खराब की, आपने खराब की है उस बच्चे की जिंदगी जिसको खुदावंद ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया था। तो आपने तो उसका मर्डर कर दिया, आपने तो उसको खराब कर दिया, आपने उसका शोषण कर दिया। क्योंकि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक आध दो बच्चों को अगर सही नहीं बना सकते और उन्हें सही नहीं कर सकते, है ना, अपने ईगो और अपनी लड़ाई और अपने इंटीमेसी और अपने फालतू चीजों की वजह से, तो इससे ज्यादा है ही क्या हमारे पास, है ना। This is what God has called us for, and let it be broken today in every Christian family.